So I think we should start now. Today, what we are going to talk about, this is for your, I think, those who want to venture in commercial farming. और उसके बाद दूसरा ये होता है कि वो चाहते हैं कुछ ऑफ सीजन में सब्जी प्रोड्यूस करना. So for them, the greenhouse management is the one area which required their attention. Because अगर आपने efficiently manage नहीं किया, तो वहाँ पे भी आपको challenges आएंगे. And उन challenges को आपको handle करना जरूरी है. So, yep. Still we are, so should we start now? Yes, sir. I think sufficient guys are there, because after they're completing this greenhouse one, we are going to discuss on the other part, the project. Okay, so I think I managed to enable you guys to understand greenhouse and why the greenhouse is required. So again, I'll start with a question to you guys: just what is greenhouse and why it is required? Whether it is essential to have a greenhouse in your hydroponic project, or without that also you can do. So whoever have, then he can just speak. After raising hand, he need to speak. So what is greenhouse? Yeah, Vikas. Yes, sir. Sir, greenhouse is a protected net जो हम farm के आसपास लगाते हैं to control the environment and protect the crops. ये हाइड्रोपोनिक के उसमें हार्डवेयर में आता है या सॉफ्टवेयर में आता है? सर हार्डवेयर में आता है, I guess. And the next question is why this is required? सर हाइड्रोपोनिक्स में सर इसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मतलब करना चाहिए, क्योंकि उसको आप हार्मफुल पेस्ट वगैरह से बचा सकते हैं, और पर्टिकुलर क्रॉप जो मतलब प्रोटेक्ट पड़ती, जो मतलब सुटेबल क्लाइमेट नहीं रहता कहीं, तो ग्रीन हाउस के अंदर आप उसको भी ग्रो कर सकते हैं, जो मतलब मार्केट में डिमांड हो लेकिन इजीली अवेलेबल ना हो. Absolutely. So off-season crops. Anybody wants to add further to what Vikas has just shared? I think there is no further addition. So what Vikas said, somehow everybody is accepting that. So yes, exactly. This is somehow the greenhouse is a kind of hardware used, or is a component in hydroponics, and basically used for if you want to create a better microclimate around the shoot, because plant is having two parts. One is below ground and another is above ground. So leaves are above ground and roots are below ground. So for root, we are doing this hydroponics, creating a better microclimate around the root zone is hydroponics, and creating a better microclimate around the shoot is somehow protected cultivation structure. So apart from that, you can create a microclimate. You also manage to minimize the pest attack, because suppose you are doing a lot of good effort and practices, and your crop is also healthy, and suddenly you get a pest attack or insect attack, and that damages your crop, then it is really means serious and a real big loss for the guy who is really putting his effort for growing the crop. So that's the greenhouse. Within the greenhouse, there are different things which need to be managed for the commercial production. So what we are going to discuss today, or the knowledge around what we are going to talk, is what is greenhouse management. Okay, what is greenhouse hygiene,
what is the microclimate and what we need to maintain inside the greenhouse, and what are the precautions we need to consider. Then insect pest management inside, and then irrigation management, fogging management, planting management, and maintenance. So these are the things which we are going to discuss today with you guys, and it is definitely a whenever you want to go for a commercial hydroponics or commercial protected cultivation. Okay, so let's understand what is the greenhouse management. So greenhouse management is somehow the objective is to ensure most ideal condition for crop production. So वो सभी मैनेजमेंट जिसमें ग्रीन हाउस के अंदर आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि आपका पौधा अच्छे से ग्रो हो सके, आपका जो पैदावार है, आपकी जो क्वालिटी है, वो आपके हिसाब से, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको मिले, उसलिए आपको ग्रीन हाउस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इस ग्रीन हाउस मैनेजमेंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक तो आपका स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें लोहा, पॉलीसीट एंड आपकी जो नेट्स होते हैं, these are the things which comes under structure. Then ग्रीन हाउस के अंदर माइक्रो क्लाइमेट आता है, माइक्रो क्लाइमेट अगेन द शूट के आसपास। देन उसमें ग्रोइंग सिस्टम जो लगा होता है वो भी ग्रीन हाउस मैनेजमेंट में आता है, whether it is soilless, whether it is NFT, whether it is a deep water culture. And then the best and means most critical and crucial part of that greenhouse management is how you are maintaining the hygiene inside. Okay, so approach is always develop a greenhouse management schedule. Or in kind of a commercial farming, or you are planning to go for a commercial farming, so just keep in your mind you need to have a complete schedule of your greenhouse management, okay, which will include all the aspects, including hygiene, including microclimate, including structure or anything. So for further assurance that yes, you need for assurance means giving a desired or a requirement, then you need to have a cyclic monitoring system. So one, you need to have a schedule. Apart from the schedule, you need to have something monitoring schedule, whether that schedule is being followed or not. Okay, so these are the some components, some basics about what is the greenhouse management. Okay, so let's understand what is hygiene. So अगर देखें hygiene, it is something कि कैसे आप अपने एरिया को साफ सुथरा रख सकते हो, जो सीधी भाषा में कहें। और हाइजीन देखें तो हम अपने घर में भी करते हैं, हम अपने ऑफिस में भी करते हैं, हम अपने कॉलेज में भी करते हैं। तो सिमिलरली जो हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं वो आपको अपने ग्रीन हाउस में भी रखनी होंगी, बिकॉज आप कुछ जीवित लाइव प्लांट से को मैनेज कर रहे हो। सो व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव? एलिमिनेट द चांस ऑफ एनी हार्मफुल पैथोजन एंट्री या डेवलपमेंट। देखो, दो ही तरीके से आपका जो पैथोजन होता है वो आपके ग्रीन हाउस में पहुंचता है, या तो आप जब भी उसके एंट्रेंस से कोई एंट्री होती है तो, या वो इंटरनली डेवलप होता है बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन। वहां सफाई साफ सुथरा नहीं रहता है, तो वहां पे खुद क्या कहते हैं आपका जो पैथोजन है वो डेवलप होता है, एंड देन इट क्रिएटेड ट्रबल फॉर योर क्रॉप। सो अगर आप देखें तो हाइजीन के लिए सबसे बड़ा चीज जो होता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, कि भाई अगर आप देखें तो ग्रीन हाउसेज में आपने देखा होगा कि ग्रीन हाउस में दो गेट घुसने का दो एंट्री गेट होता है। मे बी आई कैन शो यू, सम ऑफ यू ऑलरेडी नो एंड सम ऑफ don't know. So I'll just something like try to give you the picture. I'm just searching the on a web. If I can get one, then I'll definitely show you.
Yes, I got one. I go to this and then I'll share the sheet. I'm just loading that. So this is the structure. So top, I think you are not able to see that. So let me now again show you. So can you see now? Yes, sir. Yeah. So Yes, if you sir. see, yeah, if you see this structure, this is called as a sanitation chamber. So every commercial greenhouse need to have it, because the moment, and this is something like a well designed, well constructed structure, and I'm sure it is for maybe the Europe and all. But in India, the guys, they prepare using the plastic. Whole thing is the plastic. But this sanitation chamber is important. The moment you are entering in your greenhouse, this chamber should have all those hygiene, whether it is a hand sanitization, it is a feet sanitization, wearing your apron. So this need to every greenhouse need to have this infrastructure. If your vendor is creating, then you have to ask for that my structure need to have this. So let me again do the presentation. Yeah. So in infrastructure creation, this is the most important thing you need to always consider. One. Second, if you are going for a naturally ventilated greenhouse, so the top vent, I need to again go back to show you that top vent. So the top vent, if it is openable, you need to ask that greenhouse top vent. You need to ask the vendor put a insect proof. Whose microphone is on? I don't know. So you need to ask your vendor that he should put a net on that opening. So let me share with you guys. Where is this? So if you can see this structure, you can see that. Yes, sir. What is this? Because this is something greenhouse, something else. What is this? Sir, this is looks like a greenhouse, sir. कि poly bag वगैरह लगा रखे हैं. ग्रीन हाउस टाइप का लग रहा है, बट ग्रीन हाउस नहीं है. कोई और बताइए क्या है स्ट्रक्चर? Anybody? पॉली हाउस है सर. पॉली हाउस तो है, ग्रीन हाउस पॉली हाउस एक ही होता है यार. ग्रीन हाउस इज समथिंग, ऑल पॉली हाउसेस आर ग्रीन हाउस, ऑल ग्रीन हाउसेस, सॉरी, ऑल ग्रीन हाउसेस आर अ पॉली हाउस, बट ऑल पॉली हाउसेस आर नॉट ग्रीन हाउस. इस तरीके का वो डेफिनेशन है कि भाई जो ग्रीन हाउस है बड़ा टर्म है, एंड पॉली हाउस है छोटा, उसका बीच उसमें सब कैटेगरी है. इफ यू सी ओपन इमेज इन न्यू विंडो, तो आप देख रहे हो व्हाट आई एम सेइंग कि जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बात होता है हाइजीन के लिए, तो ये जो पोर्शन है, यहाँ जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग शुड हैव अ इंसेक्ट प्रूफ नेट, जिससे कि कीड़ा ना जा सके. अब इसमें भी देखिए आप, यहाँ पे इन्होंने इंसेक्ट प्रूफ नेट नहीं दिया है, एंड दिस हाइट इज समहाउ 1 मीटर के आसपास है, तो कीड़े यहाँ से अंदर घुस सकते हैं. So whenever you have your structure, you need to put a insect-proof net on all the opening. कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, because as Vikas has rightly said कि infrastructure जो हम create करते हैं, green house create करते हैं, तो उसका एक काम ये भी होता है कि it prevent the entry of insects. So whenever you are going for a commercial project, so one is sanitation cabin,
And the second thing is you need to have that any opening, be a pipe, be something like a ventilation air, maybe it is for a fan or anything. So there should not be any direct opening from where. Yes, Deepak. Yeah, Deepak, I've allowed you to speak. हमें पॉलिनेशन के लिए, तो पॉलिनेशन के लिए जो हमारे मित्र कीट होते हैं, जिसको वो कैसे जाएंगे पॉली हाउस में, या जो वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट जो हमने प्रोवाइड किया है? सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या हम अपने दोस्तों को अंदर घुसने देंगे? दोस्तों को तो घुसने देंगे ना सर, घुसने देंगे सर। दोस्त सर, वो प्रोसेस नहीं होगी ना। Have you ever been in Europe? यूरोप कभी गए आप? यूरोप का तो देखा नहीं सर, है ना? वहां पे इवन फैमिली मेंबर को भी अंदर नहीं जाने देते हैं, जस्ट नहीं बिकॉज सर। ऑफ सर, विदाउट पॉलिनेशन फ्रूटिंग कैसे होगी? मेरा क्वेश्चन ये था। that's how you have to opt for that type of variety which is suitable for your greenhouse. And उसके अलावा भी आप देखो तमाम तरीके की प्रैक्टिस लोग करते हैं. Some guys they use a fan, some guys they use something like shaking their वो जो ट्रेसलिंग वायर होता है उसको शेक करते हैं. सर वी कैन डू आर्टिफिशियल पॉलिनेशंस, एंड सर इसके प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा देते हैं. But because artificial pollination is little difficult for your commercial cultivation. Artificial pollination is good for your hybrid crop production, but you cannot something like follow that for your commercial production. सर ऐसे तो सर हम हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, पर वो टफ प्रोसेस है. और जो that's how I'm saying you have to select a right variety, okay, which is suitable for your greenhouse if you are going for a cross pollinated crops. जैसे अभी मिर्ची में आने लगी सर, मिर्ची की जो वैरायटी है पूसा सदाबहार है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड है. पर टमाटर में आती है, और जैसे बेल वाली सब्जियां होती, ककड़ी वगैरह में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं इसमें even the cucumber you have a good varieties. Cucumber also you have a good varieties which is self pollinated and recommended for a greenhouse. So you have to see again, Deepak, you have to connect all those dots. ये नहीं कि आप यहाँ पे बात किया तो आप पिछला भूल जाओ. If you remember, I already mentioned that you need to select a right. सर बम्बल बीज, सर बम्बल बीज इंडिया में अलाउड नहीं है. यस सर. तो इंडिया में हम लोग हैं, तो इंडिया में बम्बल बीज नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. या नहीं, मैं सर मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसा कोई हो कि हम ऐसे कुछ केमिकल्स यूज करें, और उन केमिकल्स के थ्रू हम जो बीज वगैरह होती है उनको अट्रैक्ट करने का कोई ऐसा कुछ, जैसे मॉर्निंग में बीज आती है या इवनिंग में आती है, तो उस टाइम पे हम ये जो इन्वायरमेंट है या जो भी पॉली हाउस उसको हम ओपन करते हैं कुछ समय के लिए, ऐसा कुछ है क्या तरीका? देखो ऐसा अब ये तो मतलब ऐसा आपके पास एक फिल्टर डेवलप करो कि और दुश्मन कीट उनको फिल्टर कर सके, तब आप भले ओपन करो. जब आप करोगे, आप कोई ओपनिंग दोगे हनी बी के लिए या और फेवरेबल इंसेक्ट्स के लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि यू हैव सम स्क्रीन जिससे कि आप नहीं आएंगे. हाँ, वो सही बोल रहे हैं सर, अपन फिल्टर नहीं कर पाएंगे कि भाई yes, better option is to go for something like better variety self pollinated okay. Yes, plus के साथ कुछ लोग ये भी ट्राई करते हैं कि क्या हम वो रख दें आपका हनी बी का एक आर्टिफिशियल जो कमर्शियल वो होता है वो डाल के हम वहां पे एक यूनिट डाल देते हैं. So वो भी पॉसिबल नहीं है, because honey bee is a kind of a social animal which need to go outside of और उसका काफी जो वर्कर्स होते हैं वो काफी दूर तक जाते हैं. तो वो, और उनका एक चीज ये भी होता है कि वो एक होल से बाहर निकले तो फिर उसी होल से अंदर जाएंगे, और अगर कभी भी कुछ वो डिस्टर्बेंस हो गया तो दे विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू देयर प्लेस. So that's how in
honeybee. So they are specifically for pollination. That okay? So these, please. Hello. Yeah. So infrastructure जब आप क्रिएट कर रहे हैं तब देगा कीड़े ना है कि आपका जो ग्रोइंग एरिया है उस ग्रोइंग एरिया में कोई भी इंसेक्ट पेस्ट नहीं का कोई स्ट्रक्चर लगा लिया तो कहते हैं कि हम इतने लोगों को दिखा दें एंड पीपल आल्सो गेट अट्रैक्टेड कि भाई मैं चलो देख के आता हूं इनका कि कैसे ये कर रहे हैं. सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, restrict entry for just minimizing the chance of all those pathogen entry. For जो commercial खेती करते हैं like Europe and developed countries में, they have a walk path outside the greenhouse and they don't allow anybody to enter in the greenhouse except the worker who is working inside the greenhouse. So that is somehow कोई भी अंदर जाता है तो वो सबसे पहुंच जाए और पहुंच जाने के बाद फिर साथ एक बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं डबल ग्रेड का आप बंद करेंगे तब आप दूसरा गेट खोलेंगे. सो सवाल आता है क्यों? बिकॉज क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई एवरीबडी नीड टू आस्क व्हाई. सो व्हाई का आंसर ये है कि जब आप एकदम डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं तो इंसेक्ट्स और पेस्ट जो है आसानी से वो अंदर चले जाते हैं. और सपोज आपने पहला गेट खोला, आप अंदर आए, आपने पहला गेट बंद किया तो जो सैनिटेशन चैम्बर होता है उसमें क्योंकि चारों तरफ से पॉलीशीट लगा होता है, छोटा होता है, हाइट कम होती है, तो वहां पे ऑलवेज टेम्परेचर ज्यादा होता है. So that environment is not that good for any pathogen to survive or any insect to survive. So अगर वो उसके अंदर भी आ गया और आपने फिर दरवाजा बंद करके दूसरा दरवाजा खोला बाद में, तो चांसेस ये होती हैं आपने उसको समथिंग लाइक 60 to 80% मिनिमाइज कर दिया कि वो आपके कमर्शियल ग्रोइंग जोन में जा पाए. और अगर वो नहीं जा पाता है तो ही विल डाई इन सैनिटेशन चैम्बर. सो इसलिए जब भी आप ग्रीन हाउस में अपना या किसी के ग्रीन हाउस में जा रहे हैं एंड इफ ही इज हैविंग अ फैसिलिटी ऑफ सैनिटेशन चैम्बर, फर्स्ट गेट खोलिए, एंटर होइए, फर्स्ट गेट बंद करिए, देन सेकंड गेट खोलिए और एंटर करके फिर सेकंड गेट भी बंद करिए. सो दिस प्रैक्टिस इज दिस मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द हाइजीन. देन उसके आगे बात होती है कि भाई लीकेज फ्री सिस्टम होना चाहिए. लीकेज फ्री मीन समथिंग लाइक कि कहीं से भी अगर कोई कट हो गया, लीकेज इज नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली द वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन आपके ग्रीन हाउस में अगर कहीं पन्नी फट गई, सो इमीडिएटली गेट इट रिपेयर्ड. सो कहीं से भी डायरेक्ट एंट्री का ऑप्शन नहीं छोड़ना है. और खास तौर से लीकेज को सील करने का जो एरिया होता है वो आपको जो नीचे का ग्राउंड से लेके जैसे ग्राउंड से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आपका रिस्क कम होता जाएगा.
जितना नीचे आपका कहीं पे कट लगा है पॉलीसीट में, उसको प्रायोरिटी पे रिपेयर करें। और अगर टॉप की तरफ जाके कोई है, आपके पास दो है कि भाई एक मेरी छत पे कट लगा, फट गई है पन्नी, और एक मेरा नीचे एकदम 1 मीटर की रेंज में फटी हुई है पन्नी, सो आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए कि 1 मीटर वाले को पहले क्लोज करेंगे और टॉप वाले को बाद में करेंगे। Why can anybody respond on that? कोई सर बताएगा नीचे से क्यों ज्यादा ऐसा? चांसेस होते हैं इंसेक्ट्स और सब घुसने के। सर चांसेस तो सर नीचे नीचे टेम्परेचर डाउन होगा तो इंसेक्ट ज्यादा उनको जीने का चांसेस ज्यादा है। ऊपर थोड़ा टेम्परेचर हाई रहेगा तो शायद वो कम थोड़ा हो जाए। ओके ओके, समाउ दोनों का आंसर यही है कि नीचे की तरफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी विद द पॉपुलेशन इन टेम्परेचर एनीवे। ओके चलो यही बताऊं, कीड़े होते हैं ज्यादा छोटे होते हैं, होती है प्रैक्टिसिंग वर्स इन्फेक्शन। भाई आपका जो पैथोजन या में चिपक के ही आ रहा है। सो जो भी वर्कर आपका जब ग्रीन हाउस में घुसे, बिकॉज ग्रीन हाउस में जब घुसता है तो it is entry in the morning and just he is coming out in the afternoon, और फिर लंच करने के बाद फिर सेकंड से टाइम में घुसता है। तो whenever he entry, he should entry with a specific cloth which may be kept in sanitation chamber, कपड़ा रखिए तरीके से उसको पहन ले, and also do all those sanitizer से, और even the कोरोना ने तो और भी सब चीज सिखा दिया। तो all those hygienic practices he need to follow before entering the greenhouse, and this is really important अगर आपको प्रिवेंशन करना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है डिस्पोजल ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स। अगर जैसे immediately because it will contaminate the infection plants. Even what I'll suggest कि भाई अगर एक जैसे से फॉर एग्जांपल लेट्यूस में बहुत कैटरपिलर की आती है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सो उसमें अगर देखो पत्ती खाता है, स्मॉल ब्लैक होती हैं जो कि उसके एक्सक्रीटा होते हैं। बॉल्स जो है आपको आसपास में गिरी दिखेंगी, तो अगर वो कहीं से भी ब्लैक स्पॉट या ब्लैक वो छोटे छोटे से सर्कुलर दाने टाइप के दिखाई दिए, तो इट्स मीन कैटरपिलर इन योर क्रॉप। So the moment you are removing, you definitely remove जिस प्लांट में लगा हुआ है, उसके साथ साथ 2-3 प्लांट और आसपास से कि आपका फर्दर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएं, और इमीडिएट करना है कि निकाल के सीधे ग्रीन हाउस से कहीं दूर कि जहां मल्टीप्लिकेशन ना हो उसका। ठीक है, सो द बेस्ट पार्ट इज मे बी यू कैन जस्ट समथिंग बरी दोज प्लांट्स your compost pit. Okay, so similar if you go for a lettuce के beyond आप अगर जाते हो उसमें टोमेटो एंड कैप्सिकम में, टोमेटो एंड बहुत कॉमन सी बीमारी है, वायरस लग जाता है।
सो वायरस अगर लग गया और आपने किसी भी प्लांट पे कोई भी डाउट होता है, आपको इमीडिएटली उस प्लांट को ग्रो जोन से बाहर कर देना है और बरी कर देना है, बिकॉज उसका अगर पत्ती भी दूसरे पत्ती पे छू गई तो it may become a cause for contaminating the next plant also. So disposal of affected plant in greenhouse hygiene is really important. और जैसे वो टमाटर की बात कर रहे हैं कि अगर कोई कमर्शियल में टमाटर कर रहा है and he managed to identify that this is the viral leaf curl viral of tomato, let me show you that how it looks like. So I'll just show you the pictures so you can have a look on that image. So stop this and share the new screen. Can you see this? Hello? Can you see this virus symptoms? Yes, sir. Yes. So जैसे ही इस तरीके का, if you just put something like मैंने कुछ नहीं डाला, इसमें डाला leaf curl virus of tomato. So tomato leaf curl virus symptoms. So this is something like the way you can find out different kind of problem, recognize it. And अगर इस तरीके का कोई भी पौधा टमाटर का, and even टमाटर का इन्हीं कैप्सिकम में भी होता है, कैप्सिकम and ब्रिंजल में भी होता है. See if you see the capsicum also, but एक ये symptom जो capsicum वाला है, this is always confusing with your thrips also. Thrips and mites, they somehow top leaf में इसी तरीके की curling होती है, but you need to be a good in means become a skilled enough to identify what is something like because of a virus and what is because of the insect. So ultimately the crux of the story is we need to create a system where we should be disposing of these plants efficiently. Yes, Deepak. सर ये जो प्रॉब्लम होती है लीफ कर्ल की, ये क्या कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से होता है या कोई इंसेक्ट से होता है? दीपक आप सुन नहीं रहे, लग रहा दूसरा काम भी कर रहे हैं. मैंने बोला कि ये लीफ कर्ल जो प्रॉब्लम होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वायरस, एंड वायरस का कोई भी इलाज नहीं है. नहीं सर, मतलब मैं ये नहीं सुन तो रहा हूँ, मैंने कुछ लिटरेचर ये भी पढ़ा है कि यदि हमारे मीडिया में कोई प्रॉब्लम हो तो भी प्रॉब्लम आती है. मतलब मीडिया में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की यदि कमी है तो भी डिसीज आ जाती है. मेरा मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट भाई जैसे See, the symptoms are going to be different, okay? अगर इस तरीके की कहीं कंफ्यूजन होता है तो हमने आपको सिम्टम्स कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स बताए थे उस दिन, ठीक है? सभी न्यूट्रिएंट्स के सिम्टम इतने मतलब 4-5 तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं. If you remember, एक आध क्लास छूट गई थी मेरी, मैं बीच में एक क्लास हमारे यहाँ भी चालू हो गई तो मेरी क्लास छूट गई. videos are there, video. Yes sir, yes sir, yes sir. Thank you sir. All the videos I try to upload on a something on my YouTube channel, as well as Medicap also is uploading the videos on a place. You can get in touch with Upasna. Dr. Upasna can tell you where it is. So you should on that videos, and if you have a question you can ask. Okay, somebody else also have some question. Hello. Someone also has raised his hand for some question, or should we go ahead? Yeah, Vikas. Yes, sir. Yeah, Vikas, you have some question, or we should go ahead? सर जो हम लोग इंसेक्ट ट्रैप करने के लिए वो बनाते हैं, मतलब समथिंग स्टिकी चीज, तो वो क्या होती है सर? पूछना था. That I'll just cover in that insect में, ठीक है? Okay. अगर नहीं होगा तो मुझे at the end of the class you can just remind, huh? I'll let you know. Yeah. So while disposing your plant, just
प्लांट है तो कोशिश ये करिए कि वो किसी भी दूसरे प्लांट से इवन टच भी ना हो। सो इट इज काइंड ऑफ अ कोरोना, अगर वो फैल गया तो फिर आपका वो प्लांट तो गया। यहाँ तो कोरोना में तो मतलब मोर्टेलिटी समहाउ वेरी वेरी लेस देन 2%, बट इन दिस केस आपका प्लांट फिर प्रोडक्शन नहीं करेगा। सो डिस्पोजल का जो प्रोसेस होता है दैट नीड टू बी वेल डिफाइंड। मे बी व्हाट यू कैन डू, आस्क द वर्कर टू कट इन चॉप इन पीसेस एंड एक बैग के अंदर भर के तब बाहर ले जाए, और उसको जैसे ही जितने भी वायरस वाले प्लांट होते हैं उनको जमीन के अंदर दफन कर दे। ठीक है। रेगुलर सैनिटेशन शेड्यूल भी होना चाहिए कि भाई आपका जो एरिया है उसमें सैनिटेशन के लिए मे बी यू कैन अप्लाई सम ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स, नॉट ऑन द क्रॉप, नॉट ऑन द ग्रोइंग जोन, बट the area around the commercial growing zone inside the greenhouse। greenhouse में जो जहां पे आप फसल नहीं ग्रो कर रहे हैं किनारे किनारे आपको करना चाहिए, एंड बाहर की तरफ भी करना चाहिए। ग्रीन हाउस के बाहर से भी अंदर से भी आपको हाइजीन के लिए डिसइंफेक्शन का एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि भाई हफ्ते में एक बार करना है या 10 दिन में एक बार करना है, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इन्फेस्टेशन। सपोज आपका एक जो हॉट एंड ह्यूमिड सीजन होता है, जब इंसेक्ट्स ज्यादा होते हैं तो आपका शेड्यूल उसी तरीके से ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल आपकी होनी चाहिए सैनिटाइजेशन की, कि आपका स्प्रे 2-3 बार आपका हफ्ते में कर रहे हो। बट जब आपका कम चांसेस होता है इंसेक्ट का, देन यू कैन जस्ट प्लान फॉर कि 10 दिन में 15 दिन में एक बार होना चाहिए। बट देयर मस्ट बी अ सैनिटेशन शेड्यूल, और सैनिटेशन शेड्यूल में सिर्फ डिसइंफेक्शन नहीं होता है। अगर कहीं पे पानी लगा हुआ है, कहीं पे कोई भी गंदगी है, कुछ भी है, सो यू नीड टू क्लीन दैट। ठीक है। रिपेयर फॉर एनी सीड डैमेज, सो इट इज अगेन दैट लीकेज फ्री सिस्टम की बात जहां मैं कर रहा था कि भाई आपको शीट पे भी लीकेज हो रहा है तो उसको आपको मेंटेन करना है, एंड इवन आपके सिस्टम में भी कहीं लीकेज है, क्योंकि एनएफटी वगैरह ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो जॉइंट्स होते हैं वो बीच बीच में खुल जाते हैं। तो यू नीड टू हैव रेगुलर मेंटेनेंस शेड्यूल। अगर वो लीकेज होने लग जाएगी आपकी जो ग्रो चैनल्स है, तो वहां पे एल्गी ग्रोथ होगी, और एल्गी ग्रोथ होने के बाद फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको पानी कहीं पे भी ग्रीन हाउस में निकलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। So these are the basic hygiene management inside the greenhouse, and the purpose is prevention is better than cure। So आप पहले से प्रिवेंशन करो, ये ना हो कि आपका जब इंसेक्ट्स लग जाए तब आप स्ट्रगल करना शुरू करो, बिकॉज एक बार लग गया तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, लोगों को पता तब चलता है कि जब अच्छे खासे नंबर ऑफ प्लांट्स अफेक्टेड हो जाते हैं, उस समय मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। So this all practices are required to ensure a hygiene inside your greenhouse। हेलो, है तो माइक्रो क्लाइमेट में 3 ही तो सपोज आपको टेम्परेचर मैनेज करना है, आपको बढ़ाना या घटाना है टेम्परेचर, तो आप क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहला चीज जो है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको फैन एंड पैड ऑपरेशन शुरू करना है। अभी को बेस्ड ऑन आपके यहाँ आपके ग्रीन हाउस के टेम्परेचर सुबह क्या बजे तक बढ़ता है, ये जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे गर्मी में आपका टेम्परेचर कैसे बढ़ता है। शुरू में हो सकता है कि केवल 1 घंटे के लिए ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, तो आपका जो शेड्यूल होना चाहिए फैन एंड पैड ऑपरेशन का, उसी के हिसाब से 1 घंटे फैन चलेगा दिन में, जब आपका 1 घंटे हाई टेम्परेचर है। जब आप पीक समर में आ जाते हैं, हो सकता है कि 7 बजे से ही आपका फैन चले और 5 बजे तक चले।
सो दिस फैन एंड पैड ऑपरेशन का जो मैनेजमेंट है उसको शेड्यूलिंग इस तरीके से करनी है कि आपका जब हाई टेम्परेचर है तभी ऑपरेशन करना है। Why? Because अगर आप unnecessary ऑपरेशन करेंगे it is going to add to the cost. एक पौधे की पैदा करने में जो खर्चा होता है वो बिजली के खर्चे की वजह से बढ़ जाएगा। ओके, एंड देन फैन एंड पैड ऑपरेट करने के साथ साथ दूसरा ऑप्शन जो है फॉगिंग ऑपरेशन है, जो कि टेम्परेचर को कम करने और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने दोनों में यूज होता है। बट दिस इफेक्टिवली वर्क इन naturally ventilated greenhouse as compared to fan and pad. Fan and pad greenhouse में भी fogging operation, fogging schedule होता है, but the best impact of fogging is always in naturally ventilated greenhouse because उसमें हवा का circulation होता रहता है। इसमें फैन एंड पैड में क्या है कि ठंडी हवा निकलती है, गर्म हवा खींच के ले जाता है, ऊपर टॉप बंद करना पड़ता है जब भी फैन एंड पैड चलाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जब आप फैन एंड पैड का ऑपरेशन करेंगे तो आपका जहां कहीं से भी ओपनिंग है, मे बी ऑन द टॉप, मे बी ऑन द साइड, मे बी एनीवेयर, उन ओपनिंग्स को, ओपनिंग्स मींस इंसेक्ट प्रूफ नेट लगी हुई है वहां उस ओपनिंग पे, even then you have to put your polysit on. उस जितने भी ओपनिंग्स हैं उसको आपको बंद कर देना है। अगर मूवेबल आपका रूफ है तो उसको बंद कर देना है, साइड पे कर्टन है तो कर्टन डाउन कर देना है, तभी फैन एंड पैड का ऑपरेशन करना है, तभी आपको इफेक्ट उसका दिखाई देगा। टेम्परेचर में कमी तभी लेके आएगा, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप कहीं से भी हवा आने का सोर्स को छोड़ देंगे फैन एंड पैड ग्रीन हाउस में फैन चलाते वक्त, तो क्या होगा कि वहां से हवा ज्यादा आएगी बनिस्बत पैड से आने से, बिकॉज जो ठंड का एहसास होता है, जो ठंड का इफेक्ट होता है, दैट इज बिकॉज अ ड्राई एयर इज कमिंग थ्रू दैट, वो जो पैड होता है जिसपे कि पानी बहता रहता है। I don't know, should I show you? I think you guys can see on the net फैन एंड पैड ऑपरेशन। तो पैड के ऊपर पानी गिरता रहता है और उससे जब हवा सक करता है पंखा तो वो हवा ठंडी होके आपके ग्रो जोन में ठंडी हवा पैदा करती है। बट अगर आपका कहीं से भी खुला होगा तो इसका मतलब वहां से वो हवा ज्यादा खींचेगा और पैड के जरिए से कम होगी तो ठंडक का इम्पैक्ट कम होगा। ठीक है, एंड देन फॉगिंग ऑपरेशन की जो बात कर रहा था, फॉगिंग ऑपरेशन में आप साइड्स के भी कर्टन को काफी कुछ बंद करते हैं, ठीक है, और ऊपर टॉप वाला भी बंद करते हैं, बट छोड़ते हैं खुला, ऐसा नहीं कि कंप्लीट बंद करते हैं, बिकॉज जो हॉट एयर होगी वो वहीं ऊपर से जाके बाहर जाएगी। सो दैट्स द वे फॉगिंग ऑपरेशन इन नेचुरली ग्रीन हाउस है। तो इसका भी शेड्यूलिंग उसी तरीके से होता है कि भाई अगर टेम्परेचर मेरा जितना जल्दी बढ़ने लग जाता है, जैसे सुबह जल्दी ही आपका टेम्परेचर एक रिक्वायर्ड, जैसे 35 डिग्री आपने सेट किया कि 35 डिग्री के बाद मुझे ठंडा करना होगा, तो 35 डिग्री हो सकता है कभी कभी वो 7 बजे भी आ जाए, 8 बजे भी आ जाए, तो जितने बजे वो आपका ऑब्जर्वेशन में आएगा उतने बजे से आपका फॉगिंग ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। एंड फॉगिंग ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक वो टेम्परेचर फिर से कम नहीं हो जाता है। जो अगला इफेक्ट आता है टेम्परेचर के ऊपर, वो शेडिंग का आता है। लोगों ने चाहे देखा भी हो कि ग्रीन हाउस के अंदर एल्यूमिनेट नेट लगा होता है जो कि शेड प्रोवाइड करता है। तो अब सबसे पहले एक बार हमको ये समझने की जरूरत है कि भाई ये शेडिंग से कैसे टेम्परेचर कम होता है। सो फॉर योर नॉलेज आई कैन शेयर कि जो सन से एनर्जी आती है, तो सन से एनर्जी हीट के फॉर्म में नहीं आती है, इट इज अ बंडल ऑफ फोटॉन्स जो कि लाइट के फॉर्म में ही होते हैं, वेवलेंथ के उसमें होते हैं, और वो फोटोन के बंडल्स आपका जब पृथ्वी या अर्थ में एब्जॉर्ब होते हैं, लाइट मीन्स द बंडल्स ऑफ फोटोन जो एनर्जी का स्टोर होता है, जब वो जमीन में जाके एब्जॉर्ब होता है, तो लॉन्ग वेवलेंथ व्हेन इट इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, वहां से उस पे जो कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन होता है हीट में, सो दैट दोस फोटॉन्स कन्वर्ट इनटू हीट, और वो हीट फिर जमीन से निकलती है, एंड दैट्स हाउ टेम्परेचर बढ़ता है।
सो आपका सबसे बड़ा इफेक्टिव वे ये होगा कि अगर आप सनलाइट जो पेनिट्रेट करके जमीन तक पहुंच रही है, उस सनलाइट को अगर आप रोक दोगे तो आपका टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ना तो अर्थ में जाएगी और ना कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट वेवलेंथ होगा और ना हीट जनरेट होगी। तो दिस आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इन ग्रीन हाउस फॉर योर क्लाइमेट कंट्रोल, कि जो शेड देना है उसका भी आपको देखना है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने 24/7 कर दिया शेड जी, अब छोड़ो जी शेड हो गया, अब तो मतलब हमारा तो गर्मी का सीजन चल रहा है, बंद कर दो। ऐसा नहीं करना है आपको। अल्टीमेटली जो पौधा है उसको मॉर्निंग की 1 और 2 आवर्स का सन तो जरूर है, बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज that is the 1 to 3 hours of sunlight when plant perform 80 to 90% of a photosynthesis. सुबह के टाइम में ही पौधा अपना सबसे ज्यादा एक्टिव फोटोसिंथेसिस करता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपने वो सुबह की धूप अपने पौधों को दे दी तो दिन की धूप जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिसमें कि इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज का रेशियो ज्यादा हो जाता है, वो आपके पौधे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तब उस कंडीशन में आपको शेडिंग करनी होती है। और ये शेडिंग का भी ऑपरेशन, जैसे आपका लीफी वेजिटेबल है तो लीफी वेजिटेबल में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी अपने को समझना है पत्ती क्या है। पत्ती इज अ समथिंग काइंड ऑफ अ सोलर पैनल। जो हम लोग छत पे सोलर पैनल लगाते हैं ना अपनी यहाँ लाइट के लिए, कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी इनटू लाइट, सो दैट्स द सेम वे पत्ती जो होती है पौधों का सोलर पैनल है। और अगर आपको ज्यादा धूप चाहिए, ज्यादा धूप ट्रैप करनी है, ज्यादा लाइट ट्रैप करनी है, तो यू हैव टू पुट अ मोर नंबर ऑफ अ सोलर पैनल्स। ओके, सिमिलरली जैसे ही आपने शेडिंग करके लाइट कम की, आपका पौधे को लाइट कम मिलने लगी, सो देन द प्लांट विल टेंड्स टू एक्सपैंड द लीफ, तो उसकी पत्तियां बड़ी होने लग जाएंगी। And that is the good feature for your leafy vegetables. But that is not good for your other crops like tomato. The fruiting crops में shoot root ratio, अगर shoot मतलब लीफ ज्यादा हो जाएगी तो उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो कम हो जाएगी। इसीलिए अगर आप देखें तो टमाटो, कैप्सिकम और इवन कुकुम्बर में भी जितनी ओल्ड लीव्स होती जाती हैं, नीचे से हम उसको प्रून करते जाते हैं। सो दैट इज द रीजन, मिनिमाइजिंग दैट, बिकॉज ऑलरेडी उसकी जो सनलाइट है उतना आपको मिल रही है कि आपको पत्ती बड़ी होती नहीं दिखनी चाहिए। तो एनी फ्रूटिंग क्रॉप, मोर लाइट इज रिक्वायर्ड, सो योर शेडिंग ऑपरेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू योर क्रॉप। But if it is a leafy, then definitely early morning, जिसमें पार photosynthetic active light का रेशियो ज्यादा होता है, सुबह उसको धूप दिखनी चाहिए, बाद में दिन में जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको शेडिंग कर देनी चाहिए। So that's how you need to manage the shading or a shade net or illuminate net in your greenhouse. The next question comes air circulation. This also contribute for maintaining the temperature inside the greenhouse, but not effectively bringing down the temperature. But air circulation is contributing for making uniform temperature in the greenhouse. That is also equally important, because अगर कहीं पे भी hot air pocket बना, then it is going to create a trouble for the plant which is in that hot zone. So इसलिए जैसे आपकी गर्मी बढ़ती जाए,
आपका कोशिश करना चाहिए कि आपका एयर सर्कुलेटिंग फैन इज ऑन, which is circulating air within the greenhouse. It is not going to throw outside. It is going to circulate your air inside the greenhouse, and the purpose is to maintain uniform temperature. Now, if you recall, I mentioned another structure which is retractable greenhouse, जिसमें आप छत भी खोल सकते हैं, साइड वॉल भी खोल सकते हैं. सो आपके पास ऑप्शन होता है, जितना आपको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट देना है उतना ही कंट्रोल देना है, अदरवाइज नेचुरल इन्वायरमेंट में आप अपनी क्रॉप को ग्रो करो. सो फॉर अ बेटर कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, यू हैव एन ऑप्शन कि कब मुझे वेंट खोलना है, मतलब छत कब खोलनी है और साइड के पर्दे कब खोलने हैं. उसका डिसीजन होता है कि भाई अगर सुबह के टाइम में हमारा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, चारों तरफ आपने खोल दिया, एयर सर्कुलेशन हो रहा है, तो वहां पे हीट डेवलप नहीं होगी, क्योंकि हीट जब तक ट्रैप होती है तभी ग्रीन हाउस थोड़ा सा हॉट होता है. तो आपके पास जो शेड्यूल, आपके पास जो मैनेजमेंट होना चाहिए कि कब मुझे छत खोलनी, कब मुझे साइड खोलनी, कब बंद करना है, कब खोलना है, तो ये पूरा सा शेड्यूल होना चाहिए आपके पास बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट टेम्परेचर डेटा. So these are the some parameters, some options for managing efficiently the temperature in-house, the greenhouse. Okay, so next is the humidity, because humidity is also equally important for ensuring a better crop production inside the greenhouse. So humidity कैसे आप maintain कर सकते हैं? So humidity एक तो आपका जो है fogging से होता है. Hey Vedant, you have some question? Go ahead. No, sir, sorry, it was my mistake. Sorry, sir. Okay, okay. So questions are very less. I'm little bit effective trainer or effective teacher. That's how maybe nobody is asking a question. So fogging operation जो होता है वो एक by default or a by product or something like जैसे हम फॉगिंग को इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो फॉगिंग का एक जो बाई प्रोडक्ट है वो आपकी ह्यूमिडिटी पे आता है. सो आपको पहला जो फॉगिंग का आपका ऑपरेशन सेट करना है वो टेम्परेचर के बेस पे सेट करना है, एंड देन यू हैव टू सी कि मेरी ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट कितनी है एंड हाउ माय फॉगिंग ऑपरेशन इज इंपैक्टिंग द ह्यूमिडिटी इनसाइड द ग्रीन हाउस. सो यू नीड टू कैलिब्रेट कि जो एक ऑप्टिमम रेंज है उस रेंज पे जाके कि भाई मेरे को 2 घंटे चलाने हैं और 2 घंटे में पल्स की साइकिल लूंगा, मैं 4 सेकंड या 2 मिनट चलाऊंगा और उसके बाद मैं 5 मिनट तक बंद रखूंगा ग्रीन फॉगिंग सिस्टम. सो दैट्स द वे यू नीड टू कैलिब्रेट एंड फिक्स द शेड्यूल, फिक्स द ऑपरेशन ऑफ योर फॉगिंग सिस्टम. सो अगर ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है, बढ़ानी है, तो फॉगिंग सिस्टम आपको ऑन करना पड़ेगा, और अगर घटानी है तो फॉगिंग सिस्टम बंद कर देना होगा. ग्रेजुअली वो वहां का माइक्रो क्लाइमेट ड्राई हो जाएगा. दूसरा जो ऑप्शन होता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, आपको वेंट के ऑपरेशन का एफिशिएंट मैनेजमेंट करना होता है. वेंट कहाँ होता है? वेंट एक तो टॉप में होता है, दूसरे वेंट्स जो है साइड में होते हैं. सो ऑलवेज जो आपको टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का है, टेम्परेचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट अगर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए है, तो आपको ग्रीन हाउस के सभी वेंट को बंद कर देना होगा. जैसे ही आप बंद करोगे उसमें ह्यूमिडिटी बिल्ड हो जाएगी. बट ये ध्यान रखिएगा कि आप कभी ऐसा मत करिएगा कि आपने बंद कर दिया ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए और फिर भूल गए या घर चले गए और पूरे हॉट पीक आफ्टरनून में वो बंद रहा और वहां पे उमस क्रिएट हो गई. उमस मतलब वहां पे ह्यूमिडिटी प्लस हाई टेम्परेचर कन्वर्ट्स द
वेपर मींस जो वेपर होती है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देती है, एंड स्टीम का जो लेटेंट हीट होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए आपके पौधे पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगेगा अगर इस तरीके का ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज जो होता है कि अगर आपको ह्यूमिडिटी बढ़ाना है तो आपने वेंट को बंद किया, आपके जैसे उसके आसपास तक ह्यूमिडिटी पहुंच गई, आपको वेंट फिर से खोल देना है। ओके, और सिंपल सा देन अगर आपको घटाना है तो वेंट आपको खोल देना है, और बढ़ाना है तो बंद कर देना है। बट अगर आपको कूलिंग इफेक्ट ज्यादा लेना है बनिस्बत ह्यूमिडिटी, तो आपका साइड वेंट खुला होना चाहिए, बिकॉज साइड वेंट जब खुलेगा तो ड्राई एयर अंदर आएगी और वो कूलिंग इफेक्ट देगी और गर्म होके बाहर जाएगी। सो फॉगिंग ऑपरेशन में ओनली द टॉप वेंट इज क्वाइट क्रूशियल, बट साइड वेंट तब हम बंद करना चाहिए जब आपको ह्यूमिडिटी रियली कुछ ज्यादा बढ़ानी है, मतलब आपकी ह्यूमिडिटी सडनली बहुत लो हो गई और आपको इसको बहुत तेजी से बढ़ाना है, तब आपको साइड वेंट भी बंद कर देना चाहिए। ह्यूमिडिटी बढ़ाने का एक देसी तरीका भी है कि भाई आप जब गर्मी होने वाली है, जैसे आपका नॉर्थ इंडिया में देखें तो 10 बजे के आसपास गर्मी बढ़ने लग जाती है, तो उस समय आप जो जमीन है, अगर कच्ची जमीन है या पक्की भी है, तो आप उसमें पानी डाल दो। सो ऑटोमेटिकली वो जो पानी आप डालोगे वो हीट की वजह से एब्जॉर्ब होगा और वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। So that is also one way of enhancing the देसी तरीका ह्यूमिडिटी बढ़ाने का है। The third microclimate जो होता है आपके crop production in controlled environment is the light। और वो लाइट क्या है कि आपको ये एश्योर करना है कि मेरे पौधे की जो लाइट की जरूरत है, और पौधा, फिर मैं एक चीज बोलूंगा कि केवल फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की जो स्पेक्ट्रम होती है 400 to 700 की वेवलेंथ, उसी को वो एब्जॉर्ब करता है। तो आपका जो एफर्ट होना चाहिए, हाउ टू एनहांस दैट लाइट एक्सपोजर टू योर प्लांट। सो एज आई मेंशन, मॉर्निंग में इसका रेशियो ज्यादा होता है, तो मॉर्निंग की लाइट में आप अपने पौधों को एक्सपोज करोगे, और जब लाइट नहीं चाहिए तो आपको शेड नेट ऑन कर देना होगा और पौधों को छाया दे देनी होगी, शेड दे देना होगा। सो दैट्स द वे यू कैन मैनेज कि भाई आप एंड किस लेवल पे बंद करना है, किस लेवल पे खोलना है, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, क्रॉप स्पेसिफिक होगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, आपको तब वो स्किल आएगी। Okay, so that's the way we can reduce or increase the light requirement, adjust the light requirement. So managing the light requirement is the shade net operation, जिसको कि हम लोग so I think you people understand कि आपको ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट को कैसे मैनेज करना है, एंड व्हाट आर दोस पैरामीटर्स, जो इक्विपमेंट्स, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, वो क्या क्या है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप ग्रीन हाउस लगाते इसीलिए हो कि आपका माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन रहे आपकी क्रॉप के हिसाब से। ओके, सो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट हमें क्या करना चाहिए? मिनिमाइजिंग द एंट्री ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ पैथोजन, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जब ग्रीन हाउस मैनेजमेंट में आप इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका होना चाहिए कि एंट्री या डेवलपमेंट दोनों मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, सो एक सबसे बड़ा तरीका जो होता है ग्रीन हाउस स्काउटिंग, मींस स्काउटिंग को आप, दिस इज द टेक्निकल वर्ड, सिंपल सी बात ये होती है कि आप अपने ग्रो जोन में जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम शुरू में, आई एम टॉकिंग अबाउट द शुरू में, जब तक आपका सब सिस्टम सेट नहीं है, प्रोटोकॉल सेट नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप वहां गुजारेंगे, आपको समझ आएगा कि हमारा प्लांट कहीं पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है। तो स्काउटिंग इज नथिंग, जो आपकी टीम मेंबर हैं, 3 4 5 जो भी हैं, उनको लेके आपको ग्रीन हाउस में
चक्कर लगाना होता है, रोज के बीच में जाना होता है, कुछ सेगमेंट्स होता है वहां जाना होता है, जस्ट विजिबल ऑब्जर्वेशन करना होता है कि सब कुछ ठीक है। तो वो एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि भाई हम हफ्ते में एक दिन या डेली एक राउंड लेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर साइज ऑफ प्रोजेक्ट एंड डिपेंडिंग ऑफ योर रिक्वायरमेंट। आपको ये शेड्यूल फिक्स रखना चाहिए। एंड देयर आर स्पेसिफिक सीजन व्हेन इंसेक्ट पेस्ट अटैक इज अ हायर साइड, देन द स्काउटिंग साइकिल नीड टू बी हायर। Management of a sanitation chamber, yes, definitely I have already discussed this with you guys. जितना efficiently आप sanitation chamber में hygiene maintain रखोगे, entry आप restricted रखोगे, उतना ही अच्छा आपको result मिलने वाला है। And then installation of trap. Maybe I'll just answer, somebody has asked the question how it is happening. So insect trap is a kind of होता है कि आपका yellow and blue and different color के आते हैं, but most common is yellow one, ठीक है। तो येलो ट्रैप होते हैं, उसके येलो शीट होती है, उसके ऊपर स्टिकी सब्सटेंस लगा होता है, जिससे कि जो टाइनी उड़ने वाले कीड़े होते हैं वो उस पे जाके चिपक जाते हैं। तो सपोज अगर हमने सब कुछ प्रैक्टिस अच्छे से किया है, सब कुछ सेटिंग अच्छे से है, मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है, डिस्पाइट ऑफ दैट इफ सम इंसेक्ट दे मैनेज टू enter the greenhouse, they will stick to that. So that is called as insect trap. The question was कि भाई ये इसमें क्या होता है। So insect trap जो बनता है, I think even my knowledge also updated recently. I was not aware on that, but I was aware on the basic principle कि इसमें एक ऐसा फ्रेग्रेंस, ऐसी महक होती है जो कि मेल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। सो इनमें जो अपनी इंसेक्ट्स में जो अपना प्रोसेस होता है, the female they produce a unique kind of fragrance or scent. Based on that, the male attracts towards the female, and that's how the mate and the multiplication happens. So जो ये येलो ट्रैप्स बनती हैं, ये हर एक इंसेक्ट्स में जो सेंट प्रोड्यूस करता है फीमेल, वही सेंट इसमें डालते हैं और स्टिकी सब्सटेंस लगाते हैं, और जिसकी वजह से वो मेल अगर अट्रैक्ट होकर उसमें ट्रैप में फंस गया तो इट्स मीन देयर विल नॉट बी एनी ब्रीडिंग और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल्ड होगी। So that's how it is recommended to install yellow traps. Yellow because yellow is the most attractive color for insect. अगर आप कभी भी देखेंगे तो येलो की तरफ इंसेक्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। That's how it is called as a yellow trap. और most of the cases में ये येलो ही होता है, एक दो इंसेक्ट्स में ब्लू भी होता है, and that I come to know maybe it is for some specific insect. So आपने सबसे पहले ग्रीन हाउस स्काउटिंग का शेड्यूल बनाया, सैनिटेशन चैम्बर में आपने अपना हाइजीन की प्रैक्टिसेस की, फिर अगर वो सब करने के बाद भी कहीं से घुस के कीड़ा आ भी गया है तो आपने येलो ट्रैप लगा दिया, उस ट्रैप में वो चिपक के मर जाएगा। Eliminate the infected plant, as I mentioned, कोई भी प्लांट अगर इन्फेक्टेड है उसको इमीडिएटली आप ग्रो जोन से, ग्रीन हाउस से बाहर कर देंगे। जब भी कोई वर्कर अंदर आ रहा है उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। जो टूल यूज करता है उसको रेगुलर, डेली और वीकली और बेस्ड ऑन योर यूज आप टूल को डिसइंफेक्टेंट करेंगे। डिसइंफेक्शन ऑफ अ नॉन ग्रोइंग एरिया, एज आई मेंशन कि भाई जहां पे आप ग्रो कर रहे हो वहां पे आपको केमिकल यूज नहीं करना है, बट आप उसके सराउंडिंग में केमिकल यूज कर सकते हैं फॉर किलिंग एनी पैथोजन डेवलपिंग। So this is kind of a prevention, और what I follow, मैं तो अंदर भी करता हूँ और ग्रीन हाउस के आसपास बाहर भी करता हूँ कि जिससे जो होस्ट डेवलप हो रहे हैं, पनप हो रहे हैं, वो वहीं मर जाए। In disinfection of a surrounding area, so that's how you manage efficiently the insects and pests in your greenhouse. So this is all about how you manage insect pests inside the greenhouse.
हाँ, so next is efficient जो इरिगेशन मैनेजमेंट ग्रीन हाउस में होता है, उसका सिंपल सा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिगेशन वाटर। तो जो पानी आपका आ रहा है वो पानी आपके पौधे को सही से मिले, उसका ही जो मैनेजमेंट होता है, दैट इज नोन एज इरिगेशन मैनेजमेंट इन ग्रीन हाउस। सो आपका इरिगेशन शेड्यूल होना चाहिए, और ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इरिगेशन शेड्यूल आपका फिक्स हो गया। आपको गर्मी का अलग होगा, बरसात का अलग होगा, ठंड का अलग होगा, बिकॉज जो पानी की रिक्वायरमेंट है पौधे की वो घटती बढ़ती रहती है। तो आपके शेड्यूल बने होने चाहिए। सो योर वर्कर शुड बी कैपेबल इनफ कि भाई मेरे को ये बताया गया है, ये करना है। एक तो वो सीधा स्ट्रेट वाला हो जाता है। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन कम्स कि भाई टोटल पानी भी कम करना है। इरिगेशन शेड्यूल मतलब दिन में कितनी बार आपको इरिगेशन देना है अपने पौधों को, और दूसरा चीज जो होता है कितने समय तक देना है, जिससे कि आपका पानी, कितना पानी आपके पौधों को देना है वो डिसाइड होता है। तो एक तो शेड्यूल बना के रखना है, दूसरा ये भी बना के रखना है कि कितना पानी आपको देना है बरसात में, कितना गर्मी में, कितना ठंड में। क्योंकि अगर कहीं पे भी ये इम्बैलेंस होता है तो इट डायरेक्टली इम्पैक्ट योर प्लांट्स। ओके, सो जो इरिगेशन शेड्यूल बनेगा आपका वो इस तरीके का होगा कि भाई दिन में 4 इरिगेशन करना है। गर्मी में हो सकता है 10 मिनट के लिए एक इरिगेशन हो, जाड़ी में हो सकता है कि वो 4 मिनट के लिए हो, बरसात में हो सकता है वो 2 मिनट के लिए। So that's the way the complete irrigation scheduling and management in greenhouse you have to ensure. उसके बाद आपका एक, अगर याद हो तो मैंने बताया था कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक ओपन सिस्टम होता है। तो सॉइललेस में जो ओपन सिस्टम होता है उसमें जो लीस्ट वाटर होता है, जो पानी एक्सेस जो निकल के ग्रो बैग से बाहर जाता है, तो उसका मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ना हो कि वो इतना ज्यादा हो जा रहा है कि आपका पानी कीचड़, वहां पे कीचड़ सा बन रहा है एंड वाटर स्टैग्नेट हो रहा है। सो अगर ऐसा दिख रहा है तो लीज्ड वाटर का सबसे पहले उसको आप रिमूव करोगे एंड देन यू go back to just validate your irrigation cycle and quantity, because तब in case अगर वो लीचिंग ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब आप पानी ज्यादा अप्लाई कर रहे हो। So as I mentioned, you need to calibrate your irrigation management in greenhouse as per the weather, even weather। एक तो climate हुआ कि भाई ठंडी गर्मी और बरसात में अलग से, इवन वेदर किस तरीके का है। सपोज आपकी गर्मी ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको पानी ज्यादा देना होगा, और अगर आपकी गर्मी कम है तो हो सकता है आपको पानी कम देना होगा। तो ये जैसे सपोज आपका जब ये बेसिकली मेजर जो आता है ये आपके ठंड वाले टाइम में आता है, कि ठंड वाले टाइम में और बरसात वाले टाइम में, कि जिस दिन धूप अच्छी निकली हुई है उस दिन आपकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट दूसरी होती है, और जिस दिन आपको बादल है उस दिन की वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो आपका जो बंदा ग्रीन हाउस का मैनेजमेंट कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए, इतना सेंस होना चाहिए कि भाई आज बादल है, चलो मैं आज पानी कम कर देता हूँ, कि मतलब कुछ मिनट ऑपरेशन कम कर देता हूँ, या एक साइकिल में कम कर देता हूँ, एक साइकिल ही आज कम चलाते हैं, इससे पानी कम हो जाएगा। सो व्हाट as a greenhouse management, you need to calibrate that irrigation schedule as per the day's weather। एक तो दिन के वेदर से, दूसरा द क्लाइमेट, ठंडी गर्मी बरसात में, ये इसमें आपको अपना कैलिब्रेट करके सेट करके स्टैंडर्डाइज करना है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि भाई जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें कहीं से लीकेज नहीं हो, बिकॉज अगर लीकेज है तो वो 2 चीज करता है, एक तो इन्फेक्शन क्रिएट करने का कोशिश वो करता है, दूसरा हाइजीन को डिस्टर्ब करता है। तो देयर मस्ट बी अ रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर इरिगेशन इक्विपमेंट, सो इट शुड बी लीकेज फ्री। उसका भी शेड्यूल आपको मेंटेनेंस में जब आएंगे तो मेंटेनेंस में शेड्यूल बना के रखना होता है।
Then again coming back to fogging management, so इसमें क्या होता है कि जो पानी फॉगिंग सिस्टम में यूज कर रहे हो आपको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, और फॉगिंग का पानी जो है केवल दो ही चीज के लिए यूज होता है, टेम्परेचर कम करने के लिए, ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए। सो वो अगर आप एफिशिएंटली अचीव कर पा रहे हैं तो इस मीन आपका फॉगिंग मैनेजमेंट या फॉगिंग शेड्यूलिंग या फॉगिंग का ऑपरेशन इज इन अ राइट डायरेक्शन। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो यू नीड टू अगेन कैलिब्रेट एंड सेट इट। लाइक आपको फॉगिंग शेड्यूल अगेन exactly what I discussed for irrigation scheduling, the all thing implies here also कि वेदर के फॉर्म, जब वेदर आपका आज दिन का डिफरेंट है तो आपको फॉगिंग ऑपरेशन को डिफरेंट शेड्यूल को डिफरेंट करना पड़ेगा, और क्लाइमेट डिफरेंट है मतलब गर्मी ठंडी और बरसात में, उसके हिसाब से फॉगिंग की शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। लीकेज प्रूफ अगेन वही सेम चीज जो इरिगेशन में है, इसमें भी कोई लीकेज या कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए। एंड स्पेसिफिकली फॉगिंग एंड इरिगेशन सिस्टम में क्या मेंटेनेंस का होता है कि कहीं कोई चोकिंग तो नहीं है। तो ये फॉगिंग के लिए तो बहुत इजी तरीका है समझने का कि आपने जैसे ही चलाया और ऊपर देखा और ऊपर किसी भी फॉगर से अगर पानी नहीं निकल रहा है तो इट्स मीन वहां पे चोकिंग है एंड यू नीड टू डू अ मेंटेनेंस। एंड फॉर इरिगेशन के लिए, इरिगेशन में आपको अपना ग्रो बैग देखना पड़ेगा, जो ग्रो बैग सूखा दिखेगा तो इट्स मीन वहां पे आपका पानी नहीं निकल रहा है और ये ड्रिपर चोक हो गया है। So that's how this regular maintenance is important for fogging as well as irrigation system के लिए. And then again fogging management में vent opening based on your humidity requirement and temperature requirement, आपको vent को adjust करना होगा। कभी हवा चलती रह रही है और ड्राई वेदर है तो मे बी आप जो साइड वेंट है नीचे से खोल के रखो, ऊपर बंद रखो, तो हवा नीचे से ठंडी वाली अंदर जाएगी और देन गर्म होकर ऊपर से निकल जाएगी। So this is all about fogging management. Now the last is something like, no, not last, second last. So planting management linked with your commercial return. So जो आपका effort होना चाहिए कि ensuring zero lapse between harvesting and planting. चाहे वो आपका NFT हो, चाहे वो आपका deep water हो, चाहे आपका soilless हो। एज एन एफिशिएंट ग्रोअर आपका काम ये होना चाहिए कि अगर आज मैंने अपना प्लांट यहाँ से निकाला 7 बजे, तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि 7 बजे ही आपका दूसरा प्लांट, उसमें नया प्लांट लग जाना चाहिए। तो जो कॉमर्शियल ग्रोइंग जोन है वो एवरी मिनट इट इज कॉस्टिंग टू यू। सो ये एफर्ट होना चाहिए कि लैप्स बीच में गड़बड़ या समथिंग लाइक डिले नहीं होना चाहिए आपका एक प्लांटिंग से दूसरी प्लांटिंग। तो सबसे पहले आपकी नर्सरी ऑलवेज रेडी होनी चाहिए। इफ यू रिमेंबर आई मेंशन, आई डिस्कस द क्रॉप प्रोडक्शन शेड्यूल। in that crop production schedule you have to ensure कि मेरा ये नर्सरी डेवलपमेंट है, ये वेजिटेटिव है, ये हार्वेस्टिंग स्टेज का है। तो उसी के बेसिस पे आपको हमेशा आपके शेड्यूल के हिसाब से नर्सरी रेडी होनी चाहिए कि आपने जैसे ही निकाला वैसे ही आपने अगला प्लांट वहां प्लांट कर दिया। ओके। then transplant the plant immediately after the harvest, that is the same thing. Transplant only healthy seedling. So, अगर आपके पास सीडलिंग कम है तो चलो ठीक है, weak seedling also you can plant. But if you have a sufficient seedlings, so always plant the healthy one first. So ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जब आप कभी भी प्लांट लगाने जा रहे हैं, हेल्दी वाले को पहले लगाएंगे और फिर अगर जरूरत पड़ी तो वीक वाले को लगाएंगे, अदरवाइज वीक वाले को डिस्कार्ड कर देंगे। और अगर आपको दिख गया कि डिजीज एंड वीक सीडलिंग है या इंसेक्ट लगा हुआ कोई सीडलिंग है, डिस्पाइट आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको उस सीडलिंग को प्लांटिंग नहीं करनी है। प्लांट शेड्यूल बी एज पर द मार्केट डिमांड। सो आई मेंशन एट द बिगिनिंग ओनली कि आपका जो पूरा सा प्रोडक्शन शेड्यूल होना चाहिए वो बाजार की क्या जरूरत है उसके मुताबिक होना चाहिए। सपोज आपका बाजार कहता है कि मेरे को 10 पौधे रोज लेट्यूस के चाहिए, सो आपकी जो नर्सरी होगी मे बी हफ्ते में 1 या हफ्ते में 2 दिन आप लगाओगे, बट जो प्लांटिंग होगी, क्योंकि आप एवरीडे 10 प्लांट निकाल रहे हो तो एवरीडे 10 प्लांट आपकी प्लांटिंग होल्स में जाएंगे। और सपोज
टमाटर के केस में या खीरे के केस में कि भाई किसी ने कहा कि मेरे को डेली 10 किलो का खीरा चाहिए, तो 10 किलो के हिसाब से आपको कितने प्लांट लगाने चाहिए, वही नंबर ऑफ प्लांट आपको प्लांटिंग जोन में डालना है और उतना ही कन्वर्ट करके निकाल के ले जाना है. So these are the things, something you can manage by having a market link planting schedule. Okay, as I mentioned in the beginning also कि भाई जब आप कोई क्विक साइकिल वाली क्रॉप like any leafy crop कर रहे हैं, always plant 2-3 seeds in every pot. बिकॉज ज्यादातर उसके जो लीफी वेजिटेबल के सीड्स हैं वो महंगे नहीं होते हैं और उनको आपको कोशिश करना होता है कि भाई 2-3 लगाएंगे तो एटलीस्ट एक निकल के आएगा ही. अगर वो 2-3 भी निकल आए तो आपका जो पत्ती होगी वो भरी हुई होगी. सो देयर इज नो नीड फॉर इवन गोइंग फॉर थिनिंग. अगर 2-3 पूरे भी निकल आए तो यू जस्ट प्लांट एज इट इज. ओके, बट इन केस ऑफ अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, जो सीडलिंग जब आप डालते हो नेट कप में या किसी जैसे आपका वो कोको प्लाग और ये सब चीजों में डालते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू पुट अ 2 सीड. यस दीपक, यू हैव सम क्वेश्चन. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग सीडलिंग करते हैं, हेलो, या गो अहेड. सीडलिंग करते हैं तो जैसे टोमेटो की मैंने सीडलिंग की है तो ग्रो मतलब वो जर्मिनेशन हो जाता है. जर्मिनेशन के बाद वो मतलब प्लांट डंप हो जाता है, मतलब वहीं पर वो उसकी क्या बोलते हैं, उसका तना वहीं का वहीं टूट जाता है, मतलब वो ज्यादा बढ़ नहीं पाता. वो क्या प्रॉब्लम है वो? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नर्सरी का होता है, नर्सरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो डैम्पिंग ऑफ होता है. सर रीजन क्या है? मतलब कुछ रीजन इज मॉइस्चर. अगर आप ज्यादा मेंटेन कर रहे हो और फंगस का ग्रोथ होता है, प्लांट आपका सीडलिंग का जो कलर होता है ना, वही वो किल करता है. जहां से सेम यस सर. हम बताओ. सेम सीड को जब मैं मिट्टी में डालता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. जब मैं कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट डालता हूँ और ट्रे यूज करता हूँ तो जर्मिनेशन तो 100% होता है. और सेम सीड को जब मैं मिट्टी में डालूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जो कोकोपीट और इसके साथ करता हूँ तो वो डंप हो जाता है. तो ये प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आई. आपको याद है हमने एक चीज बोला था, और ये क्या है? सॉइल इज द बफरिंग एजेंट. सर इसमें हम क्या डालें? मैं थोड़ा सा एज ए फर्टिलाइजर पूछ रहा हूँ. फर्टिलाइजर में क्या डालें? फर्टिलाइजर नहीं डालना है आपको सीडलिंग में. इनिशियली आपको समथिंग लाइक 10 दिन तक कुछ नहीं डालना. हाँ 10 दिन तक तो कुछ नहीं डाला है. जर्मिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. See, that's how. मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम बता रहा हूँ कहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम है. खुद बोला कि मिट्टी में जब मैं लगाता हूँ तो मिट्टी में मेरा अच्छा चलता है, बट जब मैं कोकोपीट में करता हूँ मेरे को गड़बड़ होती है. सर क्या एनपीके डालूं, 19-19 डालूं या क्या डालूं? समझो, सबसे बड़ा चीज दीपक ये होता है, प्रॉब्लम को समझना होता है. सर प्रॉब्लम तो मैं बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी. मैं अब आज आप एक्सपर्ट हैं, आपसे इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं. That's how I'm saying. You were just something like coming, jumping and saying न्यूट्रिएंट कौन सा डालना क्या डालना. बट सबसे बड़ा जो होता है कि प्रॉब्लम अगर आपने सही से आइडेंटिफाई की ना, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. हाँ, प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट की नहीं है. अब फिर ऑब्जर्व करना. लेट मी ट्राई टू शो यू इफ आई कैन गेट अ सम पिक्चर, क्लियर पिक्चर डैम्पिंग ऑफ. सर मैं बार बार प्लांट को धूप भी दिखाता हूँ, 2 घंटे छत पे ले जाता हूँ, फिर नीचे रखता हूँ. मतलब मैं ऐसा नहीं है कि उसको, और मैं प्रॉपर वो नेट भी बना रखा कि भाई इसको अंदर, और मतलब ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करता हूँ कि इसको मैं पॉलीथीन में पहले पैक करता हूँ पूरे सीडलिंग ट्रे को, वो मॉइस्चर बढ़ाने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. और तब भी प्रॉब्लम, जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी पहुंच रहे हैं, प्रॉब्लम में पहुंच रहे हैं. आपकी प्रॉब्लम क्या है वो सबसे पहले समझना है ना. ठीक है, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन. अगर आप देखोगे तो आपका पौधा ऐसा होता है. हाँ सर ठीक है, ऐसा होता है ना. हाँ ऐसे ही, लगभग ऐसे ही होता है. ऐसे मर जाता है ना. ये जैसे ये देखो बीच क्या जड़ और रहा है. यस सर, यस सर, यस सर. क्या लगभग 100% यही है सर. even if you see this tomato plant, अगर आप देखोगे तो आपका जो प्लांट इतना बड़ा होके भी गिर जा रहा है, ऐसे ही होता है. यस सर.
सो इसमें प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट की कोई नहीं है, आप केयर ज्यादा कर रहे हो। सर केयर तो एब्सोल्युटली। और स्पेसिफिकली केयर ज्यादा क्या कर रहे हो, आप पानी ज्यादा डाल रहे हो। पानी चल ठीक रहा। है, यस सर। तो मिट्टी में इसीलिए नहीं मरता है, क्यों? क्योंकि दैट सॉइल इटसेल्फ इज अ बफरिंग एजेंट। अगर थोड़ा ज्यादा पानी डाल देते हो तो वो बह के इधर उधर कैपिलरी एक्शन से चला जाता है। बट कोकोपीट में वो ऑप्शन नहीं है। कोकोपीट इज होल्डिंग अ लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। सो हमें लगता है कि ऊपर से गीला दिखना चाहिए और हम डाल देते हैं पानी। सो हमने आपको अगर याद हो तो मैंने पहले भी यही कहा था कि भाई पौधा कभी कमी से नहीं मरता है, कमी ओवर से एकदम, वाटरिंग। यस, एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा तभी मरेगा, बट एक्सेस से बहुत जल्दी मर जाता है। ठीक है, सो हाँ ट्राई सर। टू मेंटेन, कीप योर टॉप लेयर ऑफ, जब कभी भी आप जहाँ सीडलिंग डालते हो अपना टॉप लेयर देखो कि ऑलवेज सूखी रहे। ठीक है, अगर यस सर। दोपहर के टाइम में पौधा थोड़ा सा विल्ट भी हो जाए, डोंट बॉदर। ठीक है, तो शाम को फिर सही हो जाएगा। समझ रहे हो? सर बहुत प्रॉब्लम होती है सर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए प्लांट खरीद के लाना पड़ता है मुझे नर्सरी से फिर। अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने आपकी जड़ बता दी, जड़ प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, अब आप मैनेज आप ही को करना पड़ेगा। हाँ सर वो देखूंगा मैं करके, इस बार करके देखता हूँ। या थैंक यू सर। Okay, so coming back to our planting management. So हमने ये भी बात कर लिया यहाँ तक कि भाई दीपक जंप जब हम लोग बात करने वाले थे कि 2 प्लांट लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, जैसे अगर आप सीड देखें, टमाटर हाइब्रिड चेरी टमाटर, हाइब्रिड कुकुम्बर, हाइब्रिड कैप्सिकम, सो द सीड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप इज रियली कॉस्टली। बट क्योंकि वो 6 महीने की क्रॉप होती है, 9 महीने की क्रॉप होती है, कुकुम्बर इस 3-4 महीने की होती है, तो इवन देन यू कैन अफोर्ड। ठीक है, बट अगर आप ये लीफी की देखें तो रिलेटिवली पर सीड कॉस्ट जो होती है कम होती है, तो ऑलवेज गो फॉर 2-3 सीड्स। बट इफ यू आर अ गुड मींस ग्रोअर, then even for tomato, capsicum, cucumber, you should go for only 1 seed. Even specifically for a cucumber, you should go for a 1 seed because that cucumber is a big seed. So most of the cases में cucumber निकल आता है। और कुकुम्बर का भी सीड, टमाटर का भी सीड, कैप्सिकम का भी सीड महंगा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन आपकी एबिलिटी। इफ यू आर एफिशिएंट इनफ, गो फॉर ओनली सिंगल सीड। अगर इफ यू हैव एनी डाउट, यू गो फॉर डबल सीड प्लांटिंग। ओके, coming to the last section of a greenhouse management, it is maintenance. So maintenance का जो objective होना चाहिए आपका, interruption free operation of infrastructure. So this I am just confining to the greenhouse sceneries, only to a greenhouse. So सबसे पहला आपके पास एक कंटिन्यूअस मेंटेनेंस का शेड्यूल होना चाहिए कि भाई मेरा रेगुलर मेंटेनेंस ये करना है। ये 4-5-6 चीजें हैं जिसको कि मुझे रेगुलरली में भी महीने में एक बार देखनी है, या हर क्वार्टर में एक बार देखनी है, या डेली देखनी है। तो उस तरीके का एक शेड्यूल बन जाना चाहिए कि भाई दीज आर द फ्यू थिंग्स इन अ ग्रीन हाउस, एवरी डे यू नीड टू सी दैट इट इज वेदर फंक्शनिंग और नॉट। और एक हम लिब्रिकेशन की, भाई वो ग्रीस लगाना है, जो भी मूविंग पार्ट्स होते हैं ग्रीन हाउसेस में, लाइक आपका जो टॉप वेंट खोल रहा है, साइड वेंट खुल रहा है, सो व्हाट एवर द मूविंग पार्ट, यू नीड टू एंश्योर अ रेगुलर लुब्रिकेशन फॉर दैट। और स्पेयर भी आपके उसमें मिनिमम जो रिक्वायर्ड स्पेयर्स होने हैं वो रहने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई ब्रेकडाउन हुआ और अगर आपकी क्रॉप स्ट्रगल की तो वो आपको भारी पड़ेगा। तो इसलिए you need to go for such type of जो बेसिक आपके स्पेस होने चाहिए वो आपके स्टोर में होने चाहिए। और जैसा हमने क्रॉप स्काउटिंग की थी उसी तरीके का मेंटेनेंस स्काउटिंग शेड्यूल भी होना चाहिए। ओके, सो विद दैट I already managed to reach
the end of your greenhouse management topic. I would love to take questions from any of you if you are have any doubt. Okay. So yeah, whoever wants to have a question, they can just something ask their question. Yes, it looks like everybody understood everything. Okay, that's great. That's great. I only consider that you got 100% absorbed. That is your headache, whether you got 100% or 0%, that is your headache. I'm considering that you got 100%. So Jasmine, are you there? Can you listen me? Hello. Your network is not that good. Jasmine, you shared something very interesting, the project. So are you in a position to show us that project? There is some issue with Jasmine network. No issue, Jasmine. Your network is not allowing us to connect and share your knowledge. Who else want to share? धर्मेंद्र, आपका कहां तक पहुंचा प्रोजेक्ट? हेलो, hello, am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Okay, Dharmendra, I think he's not. okay, so everybody has promised to share the progress of project by Saturday. So I got somehow 3 or 4, I think 3 or 4 guys has shared the project progress. Yeah, Hemang. I think Hemang is something, the tower one, huh? Yes, Hemang. Mute yourself. You are still, your microphone is mute. Yep. Yes, sir. Now, sir, आपको सुनाई दे रहा है अभी? Yes, 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 yes. ये मेरा अभी मैंने स्टार्ट किया है. That's good. Okay. So this is something like a draining site. Yes, sir. अभी यहाँ से साइकिल ये पूरा चल रहा है ऐसे. That's good. Can you show me that जहाँ से आपका एंट्री हो रहा है, पानी जहाँ से इनलेट है? यहाँ से. Okay, that's good. You created something like एक wall भी लगा दिया, उसके साथ साथ आपने 2 ग्रुप में भी डिवाइड कर दिया. So why that wall is only for a 1? सर वहाँ पे क्या फ्लो ज्यादा हो रहा था, इसके चलते थोड़ा वॉल लगा दिया है वहाँ पे. हाँ, बिकॉज वो एक सिंगल पाइप है और बाकी के 2 पाइप हैं. हाँ हाँ, इसके वहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो रहा था वहाँ पे. Okay, that's great. That's great. So anybody else have any question from Hemang? So if anybody wants to ask any question on his system, they can just raise their hand and ask the question, because asking question is somehow clearing your doubt. That's good. So when you are planning to plant, Hemang? कब लगा रहे हो? मैंने कब से ये लेट्यूस 1 वीक से रखा है, लेकिन उसमें से जर्मिनेशन ही नहीं हो पा रहा है. क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है अभी इसमें? नहीं हुआ. नहीं 1 वीक से नहीं हो रहा है, 1 वीक हो गया है. You have to check something. 1 वीक तो नहीं लगता यार. वही तो, लेकिन अभी क्या मालूम, अभी आज नया डालना पड़ेगा. ये ऐसा का ऐसा ही है, वापस जैसा था वैसा का वैसा है, कुछ नहीं है उसमें. So why don't you do one thing? आपके पास नेट कप है ना? हाँ हाँ हाँ. आपके पास कोकोपीट है? हाँ सर, ये कोकोपीट पूरा बफरिंग के लिए रखा है मैंने अभी.
ये थोड़ा रेडी हुआ है। So what you can do, can you just bring your one of that net cup and fill only this coco peat and plant your seed. ओके ओके सर। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना मेंटेन कर रहे हो आप? नहीं मैंने तो अभी एसी में ही रखा है, इसके लिए समझो कि 26 डिग्री तक मेरा ये कंटिन्यू एसी चल ही रहा है। हे मेरा तो इट इज 48 आवर्स में जर्मिनेशन हो जाता है। सर सही बात है सर, लेकिन अभी क्या मालूम कुछ मेरा ही कुछ प्रॉब्लम होगा, उसके चलते कुछ हो नहीं पा रहा है। So maybe you can put directly in a net cup, ठीक है? नेट कप में कोकोपीट भर के थोड़ा सा प्रेस करके और फिर उसमें एक होल बना के, ज्यादा नीचे नहीं डालने का, क्योंकि जो सीड होता है आपका लेट्यूस का वो बहुत माइन्यूट होता है और अगर वो नीचे चला गया तो फिर वो जर्मिनेट करके बाहर तक नहीं निकल पाता है। ये शायद लगता है नीचे तक ही चला गया है, जितने भी होल है ना उसमें नीचे से ही मुझे दिख रहा है, तो शायद नीचे तक ही ज्यादा चला गया है। So वो हो जाता है, क्योंकि इसमें देखो सीड जर्मिनेट होने में जितना बड़ा सीड होता है उतना आसान होता है, बिकॉज उसमें स्टोर्ड फूड ज्यादा होता है। और जितने छोटे सीड्स होते हैं उतने छोटे सीड्स में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज उसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो बहुत कम होता है, तो दैट नीड्स अ वेरी डेलिकेट केयर। तो आप जो डालना तो मे बी हाफ अ सेंटीमीटर और समथिंग लाइक 3-4 mm ही अंदर उसको जो कोकोपीट में डालना, बट कोकोपीट को पहले कंपैक्ट जरूर कर देना थोड़ा, ठीक है? एंड देन सी, तो ज्यादा नहीं, 45 या 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 10 दिन तो यू कैन जस्ट सी दैट वेदर स्टिल द सीड इज लाइव और नॉट। वन सेकेंड, द क्वालिटी ऑफ सीड यू चेक, मे बी बाहर आप जमीन में डाल के देखो कि वो जम रहा है कि नहीं जम रहा है। मैं इसमें अभी निकाल के मैं देख लेता हूँ एक बार। Maybe the issue is with your seed, ठीक है? श्योर वही है सर। But anyway, good, impressive. और सर अभी मैंने ये 5.8 pH रखा है और 70 TDS है, उसका मैं अभी स्प्रे कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे भी ऐसा कंटिन्यू रखो तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। आपके पास EC मीटर नहीं है? नहीं, EC मीटर भी है सर मेरे पास। हाँ, तो व्हाट इज द EC? EC मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, क्योंकि मैंने भी EC चेक नहीं की है, मैंने सिर्फ TDS चेक की थी उसकी। EC आप चेक करके यू पुट इन द ग्रुप ओनली, ओके? श्योर सर। ठीक है।